Greetings everyone. We meet again. Welcome back. In this video, I'm going to discuss with you the concept of rarest of the rare doctrine, why this concept is so important, what is the need of this concept, who evolved this concept, and what are the developments that have happened till date with this concept. In brief, we are going to have a look upon all these aspects. First of all, I would like to tell you that this particular doctrine, this concept of rarest of the rare, is important for you because it may be asked in your preliminary examination directly. In preliminary examination, as we have already understood, it is objective type. They may ask you about who evolved this doctrine, for example, Supreme Court. In what case? Bachchan Singh's case. This small information is important for them to ask. So Bachchan Singh case has, in Bachchan Singh case, Supreme Court has evolved this rarest of the rare doctrine. Where this doctrine is related, this rarest of the rare doctrine is related to capital punishment. That means when you award death as a punishment, which is one of the type of punishment given under section 53 of IPC. That means this doctrine, rarest of the rare, is related to punishments. Sometimes what happened that they may ask you certain questions in mains examination, because this concept is also important for mains examination. In mains examination, they may ask you directly, what do you understand by rarest of the rare doctrine? They will not tell you that if it is given in the section 53 IPC or it belongs to criminal law. It is you who must know that it belongs, this particular doctrine belongs to the criminal law only. And in criminal law, it belongs to the aspect of punishment, and in aspect of punishment under section 53 to death. Because when you have to award death as a punishment to any culprit, any convict, then what is the doctrine that is used? What is the mood or what is the approach that a judge has to keep before awarding death as a punishment? This doctrine elaborates that approach. So if the question in mains is only written in such a way that you are confused that this doctrine might also belong to might also belong to some different substantive law, it is not the case. Rarest of the rare doctrine IPC से related है, death मतलब capital punishment से related है, और वहीं पे काम होगा. That means there is where you have to understand that what is this concept and then explain it in the answer. तो ये मेंस के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके लैंग्वेज पेपर में ऐसे आ जाता है जो कि डेथ पेनल्टीज इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो उसमें एक पोर्शन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन पे जाएगा जरूर. क्यों? क्योंकि जब आप डेथ पेनल्टी इन इंडिया और अराउंड द ग्लोब ऐसा कोई भी ऐसे आता है, तो उसकी लीगैलिटी में जब आएंगे इंडिया में, तो इंडिया में आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन को बताए बगैर डेथ पेनल्टी की अवॉर्ड कैसे समझाएंगे? That means if you have to award death penalty, what is the way that the India has evolved now? Because there are certain countries who have already abolished and who are on the verge of abolishing death as a penalty, death as a punishment in their country. इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज इसको एबॉलिश कर चुकी हैं. अब वो डेथ पनिशमेंट देते ही नहीं, दंड के रूप में कभी भी मृत्यु दंड दिया ही नहीं जाता. वो कुछ भी पनिशमेंट दे देंगे लेकिन डेथ नहीं देंगे. इंडिया में भी ये चर्चा चल पड़ी कि डेथ एज अ पनिशमेंट को रखें कि हटा दें. सेक्शन 53 आईपीसी में आज भी आपको डेथ एज अ पनिशमेंट दिखेगा. और इस पे जब चर्चा चली तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी कि बताइए क्या करें, असिस्ट कीजिए. वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी, उन्होंने समझाया कि डेथ को रखने से क्या दिक्कत है, डेथ को हटाने से क्या दिक्कत है, या फिर क्या फायदा होगा, या किस अप्रोच से हमें यह देखना है कि डेथ को रखा जाए कि हटा दिया जाए. इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इस वीडियो का यही मकसद ही है. तो ये जो सब हो रहा है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन, ये जो सब हो रहा है ये एक पॉइंट पे हो रहा है, जो पॉइंट है डेथ. अगर आप ब्रीफली यही समझ जाएं कि डेथ क्या होता है, तो आपको समझ में आती है कि ये क्या चीज अवॉर्ड करी जा रही है. दैट मीन्स ये मृत्यु दंड क्या है. मृत्यु, डेथ को आप हिंदी में मृत्यु भी बोलते हैं ना, और
मुझे लगता है कि सब कोई समझते हैं कि अगर इंसानी जीवन में अगर कोई आखिरी डर है, अगर कोई कुछ भी इनहिबिशन है उसके लाइफ में कुछ भी करने का, तो वो है कि मृत्यु ना हो जाए। दैट मीन्स जो आपको लाइफ मिली है उसका टर्मिनेशन ही अपने आप में वो एंड है जो आपको फियर देता है, क्योंकि ये लाइफ आपको मिली है, आपका एक जेस्टेशन पीरियड है, पूरी लाइफ आपका एक लाइफ साइकिल है। इसमें आप बच्चे आए, वयस्क हुए, अडल्ट हुए, फिर आप you go into your post 30s, then 50s, then you become senior, and then you start perishing again, and then you die at last. That is death. This is the life cycle. वो end होती है, एक complete life cycle है। ये सबको पता है कि ठीक है भैया जाना तो है, लेकिन लाइफ साइकिल के तरीके से जाया जाए तो एक्सेप्टेबल है। उससे पहले अगर कोई आपको भेज दे तो कहीं ना कहीं फियरफुल है, अनएक्सेप्टेबल है, अगर आप ये डिफरेंस समझ रहे हैं। क्योंकि दिमाग में तो यही आता ना कि डेथ तो आनी ही है, ये तो इट्स द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। आपके जीवन का एक ही तो सत्य है कि अगर आप आए हैं, जीवित हैं, तो आप जाएंगे जरूर। लेकिन इस फिलॉसफी से परे एक प्रैक्टिकलिटी है डेथ को लेके, वो ये कि एक लाइफ साइकिल से अगर आप डेथ अचीव कर रहे हैं, यू आर पेरिशिंग नेचुरली जिसको बोलते हैं, देन इट इज ओके। बट इफ समवन naturally or by your own mistake whatsoever, but if someone is taking that life from you, that means आपका existence अगर कोई छीन के वो डेथ का फॉर्म आज ही लेके आ जाए, तो इस पे आप क्या करेंगे? ये फियर हमेशा सबको रहता है। और किसी की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुए बगैर अगर आप उसको मार दें, तो हमने उसको क्राइम भी बनाया हुआ है और इसको हमने उस क्राइम का रिएक्शन भी बनाया हुआ है। दैट मीन्स हमने कॉन्सिक्वेंस भी बनाया हुआ है, डेथ एज अ पनिशमेंट, मृत्यु। अगर आप डेथ की परिभाषा देखें तो मैंने तो अभी आपको एक मटेरियल टर्म्स में डेथ समझा दिया, ये कहीं परिभाषित नहीं है। और अगर आप आईपीसी में देखें तो डेथ आईपीसी में सिर्फ ऐसे लिखी हुई है सेक्शन 46 में, दैट द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यहां पर भी डेथ डिफाइन नहीं कर रखी, सिर्फ ये बोला है कि डेथ जब हम कहीं भी पढ़ेंगे ये शब्द पूरे आईपीसी में, wherever we are going to read this particular term death, what would that mean? Death anywhere written would mean that some human being has died, but what do you mean by death is not defined again. That is why I told you some philosophical and material meaning of death, if you understand. तो डेथ क्या है? किसी के भी जीवन को नष्ट कर देना, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना। और निर्णय आप ले रहे हो, क्योंकि आपने निर्णय लिया जो कि आपका निर्णय नहीं है। यह निर्णय नेचुरल है, जो भी एनर्जी है वो उस पे निर्णय डाल दीजिए। आप नहीं ले सकते, कोई इंसान किसी की दूसरे इंसान की मृत्यु का निर्णय नहीं ले सकता। जब एक इंसान दूसरे इंसान की मृत्यु का निर्णय लेके उसको मृत्यु दे देता है, इसी को बोला जाता है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब द किलिंग ऑफ अ मैन बाय अ मैन, मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, इसी को होमिसाइड बोलते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डेथ दे दे, होमिसाइड। अब आप कहेंगे कि मैंने अगर किसी का मृत्यु का निर्णय लिया तो कानून मेरी मृत्यु का निर्णय ले रहा है, तो वो भी तो होमिसाइड है। बिल्कुल होमिसाइड है, लेकिन वो कानून ले रहा है, कानून के तहत ले रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गलती करी पहले, वो मुझे दंड स्वरूप मिल रहा है। वो मेरे लिए ऐसे ही चलते फिरते निर्णय नहीं ले रहे हैं। आर्टिकल 21 यही तो बोल रहा है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही तो कह रहा है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है बाय लॉ तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। एस्टैब्लिश प्रोसीजर में एक कोर्ट को एक जज को ये पावर्स दे रखी हैं कि आप मृत्यु दंड दे सकते हो। दंडाधिकारी को ये पावर दी गई है कि आप दंड दे सकते हैं। एक सत्र न्यायालय को ये पावर दी गई है कि आप दंड स्वरूप किसी को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं।
इससे पहले उसको बस ये देखना है कि ये कृत्य ना किए गए हों। आईपीसी में कुछ ऐसे 13 कृत्य हैं जिसपे दंड स्वरूप आप किसी को मृत्यु दंड दे सकते हो। बड़ी सिंपल बात है। जैसे कि अगर आप किसी का रेप कर दें और रेप के साथ डेथ हो जाए तो मृत्यु दंड मिल जाए। जैसे कि ऐसे कुछ और भी कृत्य हैं, जैसे आप राज्य के खिलाफ अगर कोई काम कर दें, स्टेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप युद्ध की घोषणा कर दें तो आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। अगर आप झूठा बयान देके किसी को ऐसे केस में फंसा दे जहां पर उसको मृत्यु दंड मिल गया तो आपको भी मृत्यु दंड मिल सकता है। ऐसे 13 ऑफेंसेस हैं, 13 अपराध हैं, 13, जिनमें मृत्यु दंड आपको दिया जा सकता है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो अब थोड़ा सा आगे चल के देखें कि ये डॉक्ट्राइन किस काम का है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। देखिए, प्राचीन काल से हम लोग मृत्यु दंड दिए चले जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया में एक प्रचलन था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारतवर्ष की बात है, पूरी दुनिया में हर जगह मृत्यु दंड दिए गए हैं और बहुत ही छोटे छोटे एक्ट्स के लिए भी मृत्यु दंड दिए गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक तो ये जो मैंने आपको समझाया कि समाज में आप रहने लायक और आप समाज में भय का निर्माण करने के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि आप रहने लायक नहीं हैं। दूसरा, आप भय का निर्माण कर रहे हैं, आपके होने से भयभीत हैं सब, तो वो भय हटेगा तो सब शांति से रह पाएंगे, नहीं तो उस डर में कौन जी पाएगा। दूसरी कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दी जाएगी इस बात पे, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति इसे करने से पहले सोचेगा कि जिस चीज को मैं प्रिजर्व कर रहा हूं अपनी लाइफ, जिस चीज को आनंदित करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, अगर ये वो ही मुझसे ले लेंगे तो मैं ये काम क्यों करूं। इसका मतलब ये आप में, आरोपियों में भी भय एक लेके आएगा, जिसको आप डेटरेंट इफेक्ट बोलते हैं। डेटरेंस सुना होगा आपने ये वर्ड, डेटरेंस मतलब गिविंग द फियर इन द माइंड्स ऑफ the culprits, the accused, people who are intending to kill someone or intending to do that act against which death is one of the punishment. It gives deterrent to them by understanding that if we do this and it is proved, if they catch us, then in that case we also will be perished. हमें भी मार दिया जाएगा। तो ये भय मुझे लगा रहेगा कि मैं ये कृत्य ना करूं जिससे मुझे दंड मिले मृत्यु का। तो ये क्या एक्ट करता है? पहला तो समाज में आपका रहना सही नहीं। दूसरा, ऐसा करने से समाज में उन लोगों में भय आ जाता है, क्योंकि सब कुछ भय है मृत्यु का, उन लोगों में भय आ जाता है जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसको मार दें या किसी को मार दिया जाए। निर्णय लेने से पहले आप सोचेंगे कि ये मुझे भी मार देंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे किसी को मार के कुछ आनंद मिलता हो तो मैं अपने जीवन को आनंदित करना चाहता हूं, और अगर मेरा जीवन ही ये ले लेंगे तो मुझे क्या आनंद मिला। मेरे अंदर भी भय है, और ये भय जो है ये जरूरी है, इसलिए ये डेटरेंट इफेक्ट की तरह काम करता है। ये सबसे बड़ा कारण है मृत्यु को दंड बनाए रखने का, कि देखिए अगर आपने ये किया तो हम आपको मृत्यु दे देंगे, तो डेटरेंट बना रहेगा। ये दो बहुत बड़े कारण है कैपिटल पनिशमेंट को इस या फिर डेथ एज अ पनिशमेंट को रिटेन करने का या फिर बनाए रखने का। अगर ये बात समझ में आई हो आपको, कैपिटल पनिशमेंट बोलूं या फिर डेथ एज अ पनिशमेंट बोलूं, एक ही बात है। डेथ को ही कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है। प्राचीन काल से डेथ बड़े अलग अलग तरीकों से दी जाती थी। बहुत सारे आपने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे जिनमें पिलरी पनिशमेंट, पोएटिक पनिशमेंट्स, इन सब की बात की जाती है। आपने देखा भी होगा कई सारी मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में तो बहुत दिखाते हैं ऐसा हाथ, और वो गला बाहर है, हाथ बाहर है, और वो लाएगा और आपका गर्दन काट देगा। जो एग्जीक्यूशनर आएगा वो आपका गर्दन काट देगा।
इसको पिलरी पनिशमेंट भी बोला जाता था कि पिलर पे लगा के पनिशमेंट दे दीजिए। बहुत जगह पे स्टोनिंग टिल डेथ भी होता था कि आप पत्थर मारते रहिए जब तक मरे ना। इससे पब्लिक आउटरीच खत्म होता है, सोसाइटी का जो भय है वो निकलता है और सोसाइटी कहती है कि जब हम शांति व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो हम इसको मार के अपना गुस्सा, अपना रिएक्शन खत्म करके ये बताना भी चाहते हैं कि देखिए दोबारा मत करिए, इस सोसाइटी को सही से चलने दीजिए। इसलिए कई कबार ये बहुत ही बार्बरिक या ब्रूटल रूप भी ले लेता था कि कैसे मृत्यु देनी है। तो मृत्यु तो हर जगह थी, लेकिन हर जगह कैसे पे थोड़ा बहुत डिस्कशन जो था वो अलग हो जाता था। कई लोग जला देते थे, कई लोग फ्लॉगिंग करते थे। फ्लॉगिंग मतलब हंटर अपना वो चाबुक लिया और मार रहे हैं जब तक वो उसकी खाल ना छिन जाए, वो मर ना जाए। उसको अधमरा करके छोड़ देते थे कि इसको चिड़िया वगैरह सब आए और नोच के मार दें। बट अल्टीमेटली डेथ इज टू बी कॉज्ड। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन नेशंस में हैंगिंग का प्रोसेस आया। कई जगह पे अभी भी केमिकल क्रस्टेशन भी है, कई जगह पे अभी इलेक्ट्रोक्यूशन है। एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा देंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक करंट डाल देंगे। दे से दैट दिस इज लेस बार्बरिक फॉर्म या फिर नॉन ब्रूटल फॉर्म ऑफ गिविंग डेथ टू अ पर्सन। तो ये सब कुछ डेटरेंस का पार्ट है। जितना बुरा आप सिचुएशन बनाएंगे उसकी मृत्यु का, जैसे मतलब जितना बुरा मीन्स होगा उतना ही भय बढ़ेगा उन लोगों में जो किसी की मृत्यु या फिर कोई ऐसा कृत्य करना चाहते हैं जिसमें मृत्यु दंड हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो आप अगर देखते हैं जगह जगह पर कि ऐसे मार दिया या वैसे मार दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है मृत्यु देने का। दंड मृत्यु का ही मिल रहा है, उस तरीके से डेटरेंस का इफेक्ट बढ़ जाता है। खुद सोचिए ना, आप किसी कोई आपको तड़पा तड़पा के मारेगा तो आपको कितना भय आएगा। अब धीरे धीरे जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व करने लगी, धीरे धीरे जब हमारे मन में ये बातें आने लगी कि हम खुद को पूछें कि ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मृत्यु दंड मिलेगा, ये क्यों कर रहे हैं। इसी से उत्पन्न हुआ वो एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी कि आप क्रिमिनल्स को पढ़िए, खाली विक्टिमोलॉजी पे मत जाइए, खाली विक्टिम्स को मत पढ़िए, क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल्स को भी पढ़िए। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट बना है क्रिमिनोलॉजी का, बहुत सारे स्कूल्स हुए हैं उसमें। और शुरू के स्कूल्स आप देखेंगे तो क्लासिकल थ्योरी हमेशा यही बोलती है कि इस शक्ल का इंसान क्रिमिनल ही होता है, उस शरीर का इंसान क्रिमिनल ही होता है, ऐसा दिमाग का इंसान क्रिमिनल होगा। ये लोग बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे थे। फिर उन्होंने मेंटल एस्पेक्ट पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे जैसे साइंस भी डेवलप करी, मेडिसिन डेवलप करी, तो थॉट्स भी डेवलप किए। सोसाइटी धीरे धीरे ही डेवलप करती है, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है। तो अल्टीमेटली सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि देखो, क्रिमिनल को भी समझो, उसके भी दिमाग को खंगालो, क्योंकि ये आजकल हम ह्यूमन राइट्स की जैसे बात करते हैं, ये बहुत ही इनह्यूमेन है कि हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं समझ रहे। हम उसके दिमाग को समझेंगे, हम उसके एस्पेक्ट्स को समझेंगे, वो क्या सोचता है, क्यों इस स्थिति में आया, उसमें अगर हमारी जिम्मेदारी भी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसको आप दिन रात बॉडी शेमिंग कर रहे हो, वो जहां भी जाता है उसकी बॉडी शेमिंग होती है। बॉडी शेमिंग मतलब कभी किसी को मोटा, पतला, हड्डी, ये सब बोल देते हैं ना, इसको बॉडी शेमिंग बोलते हैं। मतलब उसकी बॉडी का शेप या उसके बॉडी का साइज या उसके बॉडी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके आप उसको शेम करते हो कि दिस इज रॉन्ग, यू आर नॉट नॉर्मल, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। जब आप ये रेस पे करते हैं तो आप रेशियल कहलाते हैं। जब आप ये जेंडर पे करते हैं तो आप जेंडर बायस कहलाते हैं। जब आप ये रिलीजन पे करते हैं तो आप रिलीजियस बायस कर रहे हैं। ये सब शेमिंग है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सेक्स, आपका क्रीड, आपका रेस, आपकी कास्ट, ये आपने खुद को नहीं दी, ये आपके पास आ गई है।
ये आपके बस में नहीं था कि आप अफ्रीका में पैदा हुए कि इंडिया में पैदा हुए। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसमें आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप किन माँ बाप के पास पैदा होंगे आपको बताया गया था, सरकार डिसाइड कर रही है। मेरे माँ बाप मैंने डिसाइड किए नहीं किए, किसी ने भी नहीं किए। मेरा रंग, मेरी हाइट, मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सब मैं डिसाइड नहीं करता। क्योंकि अगर यही होता तो एवरीवन वुड लाइक टू बी लाइक दोज फैंसी men and women that you otherwise see in the fancy world. I hope you understand what fancy world I'm talking about. If you understand this. तो अगर कोई व्यक्ति को समाज ने इतना हरास किया है, इतना परेशान किया है किसी चीज को लेके, तो उसका जो मेंटल एटीट्यूड बना ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग and then to commit the murder, society is also taking participation in that. Society is one of the reason to frame that intention, to frame that mind. बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा, सोसाइटी बिकम्स वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इट। इसीलिए समाज ने यह भी जानना शुरू किया कि देखो हमारी भी गलती हो सकती है और हमारा ये फर्ज बनता है कि ही बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी उसको समाज में एक्सेप्टेंस मिले। वो फ्रस्ट्रेट होगा तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके पेरिश कर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, या कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके होमिसाइड कर लेंगे। और ऐसा देखा गया है, ये कोई नई बात नहीं। अगर जैसे ही सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लेगी, सोसाइटी भी रिफॉर्म होगी और उसको भी रिफॉर्म करेगी। कुछ लोग बैकग्राउंड से देखते ही क्रिमिनलिटी आते हैं। अब मान लो कोई बच्चा क्रिमिनल के घर पैदा हुआ है तो वो देख रहा है कि मेरे घर में आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, या फिर कोई ना कोई किलिंग्स हो रही हैं, या फिर कोई हर्ट, ग्रेवियस हर्ट के केसेस आ रहे हैं, किडनैपिंग के केसेस होते हैं। ही सीज दैट ऑल टाइम। ही नीड्स रिफॉर्मेशन। उसकी क्या गलती है जब उसने अपना बैकग्राउंड ही यही देखा और वो यही सीख रहा है और वो यही रिपीट कर रहा है। समाज चाहता है कि इन जैसे लोगों को आप रिफॉर्म करिए, इनकी भी हालत समझिए। इसीलिए वो ये कहता है कि एक काम करो, डेथ एज अ पनिशमेंट खत्म कर दो। क्योंकि उनको एक ऑर्डर है, वो ये देख रहे हैं कि कहीं कोई इनोसेंट ना फंस जाए। अगर किन्हीं कारणों से एक निर्दोष व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल जाए और उसको आप मार दें, तो अब आप किसको जवाब देंगे? कौन सी कानून प्रणाली को आप अमेंड करेंगे? अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को गलती से, किसी के गलत बयान से या गलत एफआईआर से या गलत इन्वेस्टिगेशन से आपने अगर किसी इनोसेंट को डेथ पेनल्टी दे दी, तो अब आप किसको जवाब देंगे? अब समाज क्या करेगा? उसको तो आपने भेज दिया, उसको तो मृत्युदंड मिल गया। अगर आपको ये बात समझ में आई हो दोनों, तो इसी को बोलते हैं रिटेंशनिस्ट व्यू और एबॉलिशनिस्ट व्यू। देखिए, ये है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब डेथ पेनल्टी को रखा जाए, उसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि ये एक रेट्रीब्यूशन का काम करता है। रेट्रीब्यूशन मतलब टिट फॉर टैट, रेट्रीब्यूट, वेंजेंस। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तुमने मुझे मारा, इसने उसको मारा है, इसको भी मार दो। रेट्रीब्यूट करना है, ये एक रेट्रीब्यूशन की बात करता है। This argument states that real justice requires people to suffer for their wrongdoing and to suffer in a way appropriate for the crime. ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी पनिशमेंट की यही तो बोलती है कि लोगों को सफर करना चाहिए। डेटरेंस में क्या होता है कि उनके अंदर भय आना चाहिए। रेट्रीब्यूशन कहता है कि इनको सफर करना चाहिए। सफर मतलब दे मस्ट बियर सम बर्डन ऑफ देयर वर्क, देयर एक्ट। आज इनको एक ऐसा बर्डन दीजिए कि ये सोचते रह जाएं कि क्या हुआ है, ये हमने क्या कर दिया। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी यही करती है पनिशमेंट की। तो ये लोग मानते हैं जो फेवर में है डेथ पेनल्टी के कि ये रेट्रीब्यूशन का काम भी करता है, टिट फॉर टैट का काम भी करता है। डेटरेंस मैं आपको बता ही चुका हूं, भय
Capital punishment is often justified with the argument that by executing convicted murders, we will deter would-be murderers from killing people. Would-be, ये क्या है? भय डाल देगा। जो आने वाले कुछ लोग हैं जो इंटेंशन लेके बैठे थे कि इसको मार दिया जाए, उनके दिमाग में भय डाल देगा। would-be murderers के लिए डेटरेंट इफेक्ट है। इसने देखो, अजमल कसाब ने इस देश पे उंगली उठाई, इसको हमने मार दिया। आइए, और कौन उठाएगा? अफजल गुरु ने उठाई, मार दिया। जो भी इस देश के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करेगा, मार देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी इस देश के खिलाफ आगे कोई टेरर एक्टिविटी करने की सोच रहा है, वो एक बार सोचेगा कि अगर हम लोग पकड़े गए, अगर हम लोग वी हैव टू ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल बी आफ्टर अस एंड दे विल पेरिश अस। इट्स नॉट एन इजी टास्क। गेट इन द पॉइंट? तो एक डेटरेंस इफेक्ट भी आता है। ऐसा जो फेवर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द डेथ पेनल्टी प्रोवाइड्स क्लोजर फॉर विक्टिम्स फैमिलीज। विक्टिम की फैमिली के लिए क्लोजर मतलब विक्टिम की फैमिली को तभी ठंडक पहुंचती है। देखिए, विक्टिम का डेफिनेशन बड़ा एक्सपेंसिव है। विक्टिम के डेफिनेशन में सिर्फ वो नहीं आता जो मरा, जो उसके साथ उसके रिलेटिव्स थे, जो उसके लीगल एयर्स थे, वो भी विक्टिम है। क्योंकि आप एक बेटे से पूछिए उसके बाप के खोने का गम, और एक बाप से पूछिए उसके बेटे के खोने का गम, कि बीवी, उसके रिश्तेदार, जब कोई जाता है तो उसके खोने का गम में ही वो इंसान पूरी जिंदगी रहता है, वो विक्टिम बनता है उस एक्ट का। इनको विक्टिमोलॉजी में और क्रिमिनोलॉजी में प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी ऐसे विक्टिम्स बोला जाता है। कि सिर्फ जिसने मार खाई वो विक्टिम नहीं है, उसका आप जो देखभाल करेगा। मान लीजिए आपको कोई पीटने आ गया है और आपको पैर वैर तोड़ दिया है, तो आपका देखभाल कौन करेगा? कौन परेशान हो रहा है आपके साथ? आपकी ये हालत देख के कौन परेशान है? आपके घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये भी विक्टिम्स बन जाते हैं। इसीलिए विक्टिम की डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी गई है सीआरपीसी में। आप सेक्शन 2WA सीआरपीसी पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ पर्सन कंडेम्ड टू डेथ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन टू रिपेंट, express remorse and very often experience profound spiritual rehabilitation। बहुत से लोग हैं जो एक्सपिएशन करते हैं। एक्सपिएशन का मतलब रिमोर्स, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रायश्चित तो वो क्या ही करेंगे, पश्चाताप करते हैं। कम से कम एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से देखा जाए तो वो पश्चाताप करते हैं। वो अगर सच में दिल से वो माफ़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं विक्टिम की फैमिली के लिए भी वो एक एहसास अच्छा है कि देखिए, अब ये मृत्यु से पहले इस बात को माना, इसको समझा। दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल है कि देखिए, काम मत कीजिए, देखिए कैसे ये इंसान अब पछता रहा है। पर मृत्युदंड तो मिलेगा ही। तो मृत्युदंड कहीं ना कहीं पेरिश होने से पहले उसको अपने कर्मों का एक एहसास दिलाने के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है, एक स्पिरिचुअल एंगल है। डेटरेंस और रेट्रीब्यूशन उसका एक मटेरियल एंगल है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, वही रेट्रीब्यूशन। फिर मैंने आपको डेटरेंस जो बताया था वो आप समझ गए। थॉमस एक्विनस noted that by accepting the punishment of death, the offender was able to expiate. Expiate का मतलब remorse, पश्चाताप, his evil deeds and so escape punishment in the next life। ये स्पिरिचुअल है। थॉमस एक्विनस नेचुरल लॉ स्कूल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है एंड कंसिडर्ड टू बी एज प्रोपाउंडर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। जो आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो नेचुरल लॉ स्कूल में थॉमस एक्विनस का, सेंट थॉमस एक्विनस का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। और बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट थे और बहुत ही अच्छे डायमेंशन उन्होंने डिस्कस किए हैं। It demonstrates that the death penalty can lead to some forms of rehabilitation। Death penalty अगर दो तो वो आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं, बिकॉज सेंट थॉमस एक्विनस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही वाज कंसिडरिंग द नेचुरल लॉ थ्योरी वाज आल्सो समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय the spiritualism around at that point of time, because he belonged to that era जब वो डार्क एजेस से निकाल रहे थे सोसाइटी को।
तो उन्हीं का एक पर्सपेक्टिव है कि उन्होंने उस वक्त रिलीजन बहुत डोमिनेंट था, तो he brought this religion aspect or this afterlife of next life aspect into it. तभी वो ये बात कर रहे हैं, पर he was again considered to be as a propounder of retaining death as a penalty. Arguments against death penalty. The statistical evidence doesn't confirm that deterrence works. जैसे मैंने आपको बोला कि सोसाइटी अब इवॉल्व कर गई है, वो चाहती है कि अब हम सोचें कि किसी को मृत्युदंड देना भी है कि नहीं, और उसमें वो क्या रीजन दे रही है कि मृत्युदंड हमेशा देने से डेटरेंस या भय नहीं आता। इसका बिल्कुल सीधा सीधा उदाहरण यही है कि आप 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट में रेप प्लस डेथ पे डेथ एज अ पनिशमेंट ला चुके हैं। अगर आप रेप करते हैं टू अ वेरी ब्रूटल फॉर्म, डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट दैट इज अवॉर्डेड टू यू। क्या उसके बाद रेप्स बंद हो गए? रेप की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड और बड़ी एक्सपेंसिव कर दी गई है। जब हम पढ़ेंगे आईपीसी में सेक्शन 376, यू विल सी दैट सेक्शन 375-76, यू विल सी दैट हाउ एक्सपेंसिव द डेफिनेशन हैज बिकम। आप देखना वो क्या सब्स्टिट्यूशन है। पहले रेप कितना नैरो था और अब कितना ब्रॉड एस्पेक्ट में उसको पढ़ा जा रहा है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कंसिडर्ड टू बी एज रेप नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट डेफिनेशन। इतना एक्सपैंड करने के बाद, नेचर ऑफ पनिशमेंट को डेथ तक ले जाने के बाद, रेप केसेस कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वो भय नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था, तो डेटरेंट काम नहीं करता। और ये क्या बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिकल एविडेंस, मतलब इनके पास डेटा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इनके पास डेटा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि डेटा क्या, ये तो आप बताइए कि क्या मर्डर्स होने बंद हो गए? जबकि मर्डर में तो साफ साफ 302 में लिखा है डेथ होगी। While you see the definition of murder in 300, you will see that 302 awards punishment on the commission of murder. And it says that death and life imprisonment are the only two punishments that you have. Death is one of the punishment. So once a person commits murder, is he being awarded death punishment? No. And if he is awarded death punishment, if in case he is awarded death punishment, we will see that if he is awarded according to the theory of rarest or the rare or how, but if he is awarded death punishment, have people stopped killing each other? What is the rate of murder now happening in the society? It is increasing day by day. It is not diminishing. That means deterrence factor is not working as such. This is one of the argument that the abolitionist here means arguments against the death penalty. People who are speaking against death penalty, that it must be removed, it must be abolished, they are known as abolitionists. People who wants it to be retained are known as retentionist. तो एबोलिशनिस्ट व्यू क्या है कि डेटरेंस के जैसा काम नहीं करता। देखो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ दोज एग्जीक्यूटेड मे नॉट हैव बीन केपेबल ऑफ बीइंग डिटर्ड बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस और डिफेक्ट। हो सकता है कि उनका मेंटल इलनेस ऐसा है कि वो ये काम करते ही रहेंगे, इससे डेटरेंस नहीं आएगी किसी में भी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि मृत्यु क्या है, वो कर ही चले जा रहा है ये काम। जैसे सीरियल किलर्स होते हैं, उनको भी पता है कि भैया 1 मृत्यु या 10 मृत्यु, मुझे ये मार देंगे, लेकिन मैं नहीं रुक रहा हूं, मैं अपना सीरियल किलिंग में चला हुआ हूं। आजकल तो बहुत सीरीज भी बन रही हैं सीरियल किलिंग पे, देखिए। दे कीप ऑन डूइंग दिस विदाउट हैविंग एनी फियर ऑफ डेथ। तो फियर नहीं आ रहा है उनको। डेथ हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन रेप केसेस सिंस 2013, स्टिल rapes continue to happen, and in fact the brutality of rapes has increased manyfold. See, they are giving you one of the example that why the deterrence does not affect. Retentionist के 2 points है, retribution और deterrence. Deterrence काम ही नहीं कर रहा है according to the abolitionist. और जो मैंने आपको बताया था execution of the innocent, कि हो सकता है कभी आप किसी निर्दोष को मृत्यु दंड दे दें, और एक निर्दोष को आप अगर मृत्यु दंड दे दें तो समाज क्या मुंह दिखाएगा खुद को? फिर क्या कहेंगे आप जब जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाए? क्यों? क्योंकि वो न्याय प्रणाली में फंसता चला गया।
The most common argument against capital punishment is that sooner or later innocent people may get killed because of mistakes or flaws in the justice system. जस्टिस सिस्टम की गलतियों और उनके खामियों की वजह से निर्दोष व्यक्ति भी मारा जा सकता है. People who oppose capital punishment are of the view that retribution is immoral. जो retributive theory हम समझ रहे थे कि समाज में इनको रहने मत दिया जाए, इन्होंने जो कृत्य किया है इनको वही वापस दीजिए, इनको वही इक्वल रिएक्शन दीजिए, मार दीजिए. एक इवॉल्व्ड माइंड ऐसा नहीं सोच रहा है. वो नहीं चाहता कि हम यहां पर समाज में टिट फॉर टैट या फिर आई फॉर एन आई वाला गेम खेलें. रेट्रीब्यूशन इज एन आई फॉर एन आई वाला गेम. गांधी जी ऑल्सो सेड दैट आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. आप मेरी आंख फोड़ रहे हो, मैं आपकी आंख फोड़ दी. अभी एक काना था, अभी दो काने. क्या फर्क पड़ेगा जी? मैं कम से कम अगर किसी का बोझ झेल रहा हूं, किसी का कृत्य झेल रहा हूं, अगर उसको भी आपने यहीं डाल दिया तो एक आंख वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं लेबर फोर्स भी सही नहीं है. आप उसको लेस प्रोडक्टिव बना रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे आपने दोनों हाथ काट दिए, मैंने आपके दोनों हाथ कटवा दिए. पहले एक आदमी कम से कम था तो सही काम करने के लिए, एक तो था, अब दोनों नहीं है. खुद ही सोच के देखिए. एक इवॉल्व्ड माइंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है और सही गलत का फैसला रीजनेबिलिटी में ले रहा है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहा है. रेट्रीब्यूशन से अगर बात बनती होती तो फिर आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, वही मिलेगा जो आप करेंगे. अब आप किसी को गाली दीजिए और जब वो आपको गाली रिटर्न में नहीं देता, देखो गाली देना, इंसल्ट करना किसी की ऑफेंस है, मुकदमा जा सकता है. पर आप किसी को गाली दीजिए, वो पलट के गाली नहीं देता, वो क्या बोलता है, देखिए सभ्य समाज का मेंबर बनिए, मैं गाली नहीं देता. और फिर अगर वो दे दे तो क्या बोलते हैं, भाई तुझ में और इनमें फर्क क्या है. वो कह रहा है कि मैं तो दंड स्वरूप गाली दे रहा हूं, पर गाली देना ही तो समाज में एबोरेंस है. हम नहीं चाहते कि दंड स्वरूप हम वही करें जो हम समाज में करना नहीं चाहते. हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई किसी का हाथ काटे. तो रेट्रीब्यूशन एक इवॉल्व्ड थ्योरी है, एक राइट और रीजनेबल माइंड की थ्योरी है. मतलब अगेंस्ट रेट्रीब्यूशन, नॉट रेट्रीब्यूशन एज सच. रेट्रीब्यूशन एक क्लासिक थ्योरी है और एक एंशिएंट थ्योरी है और एक इवॉल्व्ड माइंड से पैदा नहीं हुई. आज के टाइम में इवॉल्व्ड माइंड रेट्रीब्यूशन थ्योरी को डिस्कार्ड करेगा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो ये एक थ्योरी है पूरी जो रिटेंशनिस्ट और ये रीजंस हैं जो रिटेंशनिस्ट और एबॉलिशनिस्ट व्यू को सामने रखते हैं. अब ये चर्चा मैंने आपसे क्यों की? क्योंकि यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई. कहां आ गई? ये हमारा दूसरा चरण है इस डिस्कशन का. अब शुरू होगा एक्चुअली में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन. अब यहां अगर आप ये समझ गए कि डेथ पेनल्टी दी क्यों जाती है और क्या थॉट प्रोसेस था, तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन. Having understood the aspect of death as a penalty, and the discussions around that particular aspect of death as a penalty, that if it is good or bad, वो good bad का discussion समझने के बाद we come down to this point कि इंडिया में इस कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट को कैसे देखा जा रहा है. लेट्स सी अबाउट इट. यहीं पे आ जाता है आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन. अब भाई जो चर्चा हमने अभी समझी पिछले संदर्भ में, पिछले पार्ट में, उस चर्चा से हमें एक बात तो ये समझ में आई कि देखो डेथ पेनल्टी देना भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और हटाना भी लग रहा है कि सही बात है. ना डेटरेंस काम कर रहा है ना रेट्रीब्यूशन. तो जिन आर्ग्यूमेंट्स पे डेथ एज अ पेनल्टी है, वो ये आर्ग्यूमेंट्स जब फॉल कर जा रही हैं तो आप इसको पेनल्टी रख क्यों रहे हैं?
तो यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। किस केस में? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में। अब हो क्या रहा था, 1980 में इस केस से पहले जितने मर्डर के केस थे या जहां भी डेथ एज अ पनिशमेंट लिखा हुआ है, एक बार ये प्रूव हो गया कि ये ऑफेंस उसने किया है तो आप उसको डेथ इन दी फर्स्ट इंस्टेंस ही दे देते थे। मतलब कोर्ट बैठी हुई है, जैसे ही प्रूव हुआ कि ऑफेंस इसने किया है, ही इज फाउंड टू बी गिल्टी एंड इज कॉन्विक्टेड, और देख लिया कि वहां पर डेथ एज अ पनिशमेंट दी गई है, तो आप डेथ उठा के पनिशमेंट दे देते थे, मारो इसको, मृत्यु दे दीजिए। जब ये चलता चला गया तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो आवाज उठनी थी। कुछ ना कुछ तो वकील आएंगे और पूछेंगे और बोलेंगे कि देखिए क्या हो रहा है। हर केस में आप यही कर रहे हैं, जिस केस में डेथ लिखी है डेथ अवॉर्ड कर दे रहे हैं एज ए पनिशमेंट, which is not good because it is not working like a deterrent. It is not, the retribution is not a good theory. और ऐसे तो किसी भी इनोसेंट को आप मार देंगे, तीनों लॉजिक वो दे रहे हैं आपको। एंड माइंड इट, जो हमने अभी एबॉलिशनिस्ट और रिटेंशनिस्ट व्यू पढ़ा वो इस केस में भी डिस्कस हुआ। कोर्ट ने सब पे ध्यान दिया और कोर्ट ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि देखो ये तो एक गलत प्रैक्टिस है कि कोर्ट बस ये देख रहा है कि डेथ एज अ पनिशमेंट दी हुई है तो डेथ अवॉर्ड कर दे रहा है। ऑल्दो देयर इज अ मैकेनिज्म, once the court of sessions gives death as a punishment, it goes to high court for confirmation, and if the high court gives confirmation, only then the death is awarded as a punishment. He can go against that particular confirmation to the Supreme Court, and then in Supreme Court, if the Supreme Court also upholds the confirmation by the high court, then the death has to be awarded at last. This is the procedure. क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स के पास डेथ देने का पावर नहीं, कोर्ट ऑफ सेशंस के पास है। तो कोर्ट ऑफ सेशंस के बाद कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन के बाद हाई कोर्ट में अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, डेथ देने का एक प्रोसीजर तो है, बट गिविंग ऑफ डेथ बिकेम द कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस मीन्स एवरीवन आफ्टर सीइंग दैट देयर इज अ डेथ एज अ पनिशमेंट इन द प्रोविजन वाज गिविंग डेथ। तो ये रूटीन हो रहा था, दैट मीन्स इट बिकेम अ रूटीन मैनर। दिस इज वेयर द केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केस में यही उठाया उन्होंने बात कि ये क्या है सर, डेथ देखी डेथ अवॉर्ड कर दी। हर केस में थोड़ी डेथ अवॉर्ड करनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी लिखा है भाई, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। बिकॉज इफ यू विल सी इवन इन 302 डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओनली दीज टू, 302 इज द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो अगर आप मर्डर करते हैं तो अल्टीमेटली आपको या तो डेथ मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट टू द एंटायर लाइफ लेफ्ट ऑफ फॉर यू और वॉट एवर इट इज। जितना आपका जीवन काल बचा होगा तब तक कारागार में ही रहेंगे। इसमें आप 14 साल 10 साल में कंफ्यूज ना हो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आजीवन कारावास का मतलब जब आप कारावास में डाले गए, जीवन काल अब कारावास में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये 14 साल नहीं है, ये दिन रात नहीं है, ये 10 साल नहीं है, ये 25 साल नहीं है, ये उतने साल हैं जितने साल आप जीवित रहे। इसीलिए बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की पनिशमेंट होती है। 14 साल का पनिशमेंट अगर होना होता तो 14 साल ही लिख देते भाई, आजीवन कारावास लिखने की क्या जरूरत थी। यहां पर लिख देते वो द पनिशमेंट फॉर 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, नहीं लिखा हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि पूरे जीवन काल के लिए आपको जेल में डाल दिया गया है। अगर ये बात समझ में आई तो पूछ ये रहा है कि आप आजीवन कारावास क्यों नहीं दे देते। वो आजीवन कारावास में रहेगा, एक ही तो बात हुई, इज इट इज एज गुड एज डेथ, पर एटलीस्ट वो जिंदा तो रहेगा। कल पॉसिबिलिटीज तो रहेंगी कि अगर वो रिफॉर्म हो रहा है, वो कुछ बदल रहा है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, रिपेंट कर रहा है, रिमोर्स कर रहा है, एक्सपिएट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको मौका तो दीजिए रिफॉर्म होने का। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पिनोलॉजी क्या है? नहीं तो पिनोलॉजी में पनिशमेंट जब आप पढ़ते हो तो रेफॉर्मेटिव थ्योरी यही है
कि आप उस इंसान को समाज का हिस्सा मानिए, उसकी जो भी विकृति थी जिसने ये एक्ट किया उसको हम ठीक करेंगे और उसको समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। आप इस पे ध्यान क्यों नहीं देते? आप यही क्यों चाह रहे हैं बस बार बार तुमने मारा इसको भी मार दो, जहां जहां डेथ लिखी है सबको मार दो? समाज में आप कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं? आप नहीं मानते कि ये लोग किसी भी काम के हैं, इनको मार ही दीजिए। मान लीजिए कोई बहक गया, आप सरेंडर करवाते हैं ना बड़े बड़े डकैत से और कहते हैं ना कि आप पे कार्रवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं, आपको जेल करवाएंगे, मृत्यु दंड नहीं देंगे, आप छोड़ दीजिए, ये समाज में आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई बहक गया, वो वापस आना चाहता है और समाज को अपना एक जो उसका दायित्व बनता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आप क्यों मना करेंगे उसको? आप तो मार के बस चीजें टिट फॉर टैट करके खत्म ही कर दे रहे हैं। आप किसी को, आप खुद अपने ऊपर लगा के देखिए, अगर आप बहक जाए, कोई गलत कृत्य कर दें, आके अगर आप माफी मांग लें तो आप चाहते हैं कि मैं कभी दोबारा ये ना करूं, और आप एक एग्जाम्पल भी बनेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए और समाज में अपना जो दायित्व है उसका योगदान कीजिए। यही ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चन सिंह केस में यही डिस्कस किया कि भैया ऐसा है, कैपिटल पनिशमेंट एबॉलिश कर दीजिए, इसको खत्म ही कर दीजिए, ये सही चीज नहीं है, डेथ एज अ पनिशमेंट खत्म कर दीजिए। पहले एक पनिशमेंट थी बाय द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, लेजिस्लेचर ने उसको 1955 में खत्म कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि डेथ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दीजिए, ये आर्टिकल 20, 14 सॉरी 21, 14 और 19 का खनन है। ये एक अच्छा फेयर प्रोसीजर भी नहीं है और ये अच्छा सब्सटैंटिव लॉ भी नहीं। तो आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हटा तो सकती नहीं, वो तो सिर्फ स्ट्रक ऑफ कर सकती है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके उसको स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर उठाया गया बच्चन सिंह केस में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोनों पक्षों को सुना, एबॉलिशन क्यों करना है और रिटेंशन क्यों करना है, जो कि आप भली भांति समझ चुके हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, हम हटाएंगे नहीं, रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये डेटरेंस बना रहना चाहिए। अभी ये सोसाइटी, अभी हमारा भारतवर्ष, ये समाज जो भारत देश में है, ये इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा कि रिफॉर्मेटिव अप्रोचेस क्या हैं। जो एलिमेंट्स बहुत हार्डन्ड हो चुके हैं उनके लिए ये भय बनाए रखना बहुत जरूरी है। और यहां पर जिस तरीके से क्वारल्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, टेंशन्स होती हैं, ये भय बना रहना चाहिए। तो भय बनाए रखने के लिए इट हैज अ ग्रेट डेटरेंट इफेक्ट। ये भय बनाए रखने के लिए कोर्ट ने कहा कि हम इसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। पर बात तुम्हारी भी ठीक है एबॉलिशनिस्ट वालों, ऐसे ही बोलेंगे भाई, जो एबॉलिशन करना चाहता है तुम्हारी भी बात ठीक है। तो हम तुम्हारी बात को भी मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि देखो, जहां भी डेथ एज अ पनिशमेंट लिखा हुआ हो, उठा के डेथ दे ही मत दो एज अ पनिशमेंट, अवॉर्ड ही मत कर दो। देखो कि क्या वो सिचुएशन अवॉर्ड, डेथ पनिशमेंट अवॉर्ड करने लायक है कि नहीं है। वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या? देखिए, the doctrine simply states that death penalty is an absolute unique exception and cannot be the rule. Death penalty is an absolute unique exception and cannot be the rule. डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करना रूल नहीं है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो भैया फिर एक्सेप्शन कैसे यूज किया जाएगा? वहां उन्होंने बोला इट हैज टू बी यूज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। फिर वो आए बोलने के लिए कि देखो, ये जो एक्सेप्शन है इसको यूज करने के लिए आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की खोज कीजिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यहां पर आया ये टर्म। इतनी सारी कहानी इसका बैकग्राउंड समझने के लिए और इस तक पहुंचने के लिए थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टर्म यहां सिचुएटेड है, यहां पे उसका काम है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस,
क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, दैट मीन्स रूल क्या है, रूल है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो. दैट मीन्स इफ समवन इज कमिटिंग मर्डर and life imprisonment is written there as a punishment and also death, give life imprisonment as of rule. That means what should be your routine? The routine is life imprisonment. Now the judge is asking, then where will I give death? If I have to give life imprisonment in routine, death kab dunga? If death is an exception, where is that exceptional circumstance? What is that exceptional circumstance? Then the court said it is rarest of the rare case. In rarest of the rare cases you can grant death. What is that rarest of the rare case? See the word rare. अगर आप rare word को देखें, तो rare का मतलब है जो बड़ा seldomly हो रहा है. That means not frequent. And the rarest of the rare cases targeting towards those facts which is not frequent. देखिए, आते जाते चाकू से मार देना, बंदूक से मार देना, ये अब फ्रीक्वेंट है. क्या फ्रीक्वेंट नहीं है? दैट मीन्स ऑफ कमिटिंग मर्डर इज वन ऑफ द फैक्टर टू सी दैट व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. अगर मैं मीन्स ऑफ कमिटिंग मर्डर की बात करूं तो क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा? सोचिए, मीन्स का मतलब आपने क्या मोड एहतियात किया किसी को मारने के लिए. कोई व्यक्ति किसी का गर्दन काट देता है, कोई व्यक्ति किसी के चाकू दिल में डाल देता है, कोई किसी को बहुत सारे चाकुओं के खरोंचे दे देता है कि उसका विसरा बाहर आ जाए और वो ब्लड स्पिल से या ब्लड लॉस से मर जाए, कोई किसी को पॉइजन दे देता है, कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी को एक ब्लो दे देता है. देखा गया कि ये सब बड़ा फ्रीक्वेंट है, ये कोई रेयर चीज नहीं है. देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को समझना कैसे है, ये समझिए. ये कोई रेयर नहीं है, ये बड़ा फ्रीक्वेंट है, ऐसा होता है. दैट मीन्स आप एक चीज देखेंगे कि यूजुअल क्या है और रेयर क्या है, और समझिए रेयर का मतलब जो कि लेस फ्रीक्वेंट हो, बहुत ही कम होता हो. बहुत ही कम होता हो. उस कम में से भी जो रेयरेस्ट होगा, क्या बोल रहा है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर. पहले आप रेयर देखिए कि जो बहुत ही कम होता हो, अनयूजुअल हो, उसमें से भी जो रेयरेस्ट होगा, मतलब उसमें से भी जो सबसे कम या फिर बहुत घिनौना होगा या फिर ऐसा कि जो कभी किसी ने सुना ही ना हो, वहां जाके डेथ देना. डेथ रखी ना रखी एक बराबर, लेकिन रखी है, क्योंकि आप वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस तक पहुंचने में बहुत सारी इंक्वायरी करोगे और फिर आप कहीं जाके डेथ एज अ पनिशमेंट देंगे. तब तक मतलब रेयर केसेस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. अगर कोई आपसे पूछ ले दैट इफ देयर इज एन इंस्टेंस वेयर इट इज वेरी रेयर दैट अ पर्सन वुड बी किल्ड लाइक दैट, what would you give, death or life imprisonment? You would say life imprisonment, because life imprisonment is the rule. And death is an exception. An exception has to be understood by the doctrine of rarest of the rare. अब आपको बात समझ में आ रही होगी. रूल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का टेस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है. रूल, एक्सेप्शन, टेस्ट ऑफ एक्सेप्शन. जैसे ही आप ये समझ जाएंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को कहां ले जाना है, ये आपको समझ में आ जाएगा. I hope you are getting the point. So, if you see here, रेयर का भी जो रेयरेस्ट होगा, मतलब बहुत एक्सट्रीम ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहां पर आपको जाके डेथ एज अ पनिशमेंट देनी. फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, ये तो वैसे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है. अब आप कहेंगे टेररिज्म तो बड़ा फ्रीक्वेंट है, आए दिन आजकल ये हो रहा है, लेकिन ये सोसाइटी के लिए फ्रीक्वेंट नहीं है, ये सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी वाली चीज ही देखें, आप सिवियरिटी ऑफ दैट एक्ट भी देखेंगे.
इसीलिए कोर्ट ने सब कुछ डिस्क्राइब किया, डोंट वरी। In Bachchan Singh's case, the constitutional bench raised the question as regard to the constitutional validity of death penalty for murder under section 302. देखिए, अगर मैं इस केस के फैक्ट्स आपको थोड़े से बताऊं तो बच्चन सिंह जो था वो पहले मर्डर का कन्विक्ट हुआ, ही वॉज अंडरगोइंग पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडरगो कर रहा था, कम्यूट कर दिया तो बाहर निकल गया, बाहर आया तो फिर अपने आप किसी हुक्म सिंह के साथ रहने लगा, और हुक्म सिंह के घर में एक दिन उसकी बेटियां, उसकी बीवी, इन सबको एक दिन उसने बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी लेके सबको कुचल दिया। कुल्हाड़ी लिया, अभी मैनपुरी में भी आपने सुना होगा रिसेंटली देयर वाज एन एक्ट, बारात आई घर में, वो बहू को घर लेके आए हैं, वहां पर रात को अपना प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद सब सोने चले गए, ना जाने उस घर के एक व्यक्ति को क्या हुआ कि वो कुल्हाड़ी लेके आया और कम से कम 5 से 6 लोगों को कुल्हाड़ी मार के, कुल्हाड़ी से रौंद के मार दिया, और ऐसे मारा है कि उनका चेहरा, उनका शरीर दिख नहीं रहा है। ये फ्रीक्वेंट नहीं है, ये रेयर नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ऐसा कोई नहीं करता और ऐसा ह्यूमन कॉन्शियस ने नहीं सुना। यही चीज चाहिए बस। आपने एक इंजीनियर की कहानी सुनी होगी, तंदूर में डाल दिया, बीवी को जला दिया। एक और कहानी सुनी होगी बैंगलोर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीसेस में काट के पन्नी में डाला, फ्रिज में रख दिया, डीप फ्रीजर में उठा के बॉडी पीसेस रख दिए। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, ये नहीं होता, ऐसी किलिंग्स नहीं होती। ये इतनी सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एंड दैट टू इन सच अ ब्रूटल फॉर्म दैट द ह्यूमन कॉन्शियस इज शेकन। आप सुनते होंगे वो एक गैंग है जो रात को आता है, पूरे घर को मार देता है और पूरे शरीर पे तेल लगा के आता है, पूरे घर को खत्म कर देगा और रॉबरी करके निकल जाएगा। You understand that these acts are not rare, it is rarest of the rare. ये बहुत अनयूजुअल है। समाज में इस तरीके से रॉबरी नहीं सुनते आप आए दिन। चेन खींचने वाले आपको तो मिलते ही हैं, मोबाइल फोन चोरी हो ही रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं आप क्या हालत है। आई डोंट नो what is the reason that this is increasing day by day. It is increasing day by day, mind it. We hear every now and then about the chain snatching and the phone snatching. This is somewhere leading to injustice. यही तो कानूनी व्यवस्था है, पर ये रेयर नहीं है, ये फ्रीक्वेंट है। छीना झपटी और ये सब चीजें चलती आ रही थी। We must do something about it, that is a different thing. A law and order situation है, mind it. In Delhi, for example, I've seen many cases. And what we are doing for it, there is no roadmap. However, if you see that these kind of killings where you are doing it in a way that it is shaking the conscience of the society, it is rarest of the rare. Terrorism is considered to be rarest of the rare. यहाँ पर gravity of act ही अपने आप में इतना है कि आप आतंक की कोई भी घटना करेंगे, आप उसमें फॉल करेंगे ही करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। और जनरली भी you just have to see, for example, Swami Shraddhanand's case, मुरली मनोहर मिश्रा, बहुत ही अच्छा केस है। उसमें क्या किया कि 1 महीना तक शरीर मरा रहा, वो उस शरीर को सिर्फ ढक के रखता था, सिर्फ शक्ल दिखाता था कि वो रेस्ट कर रही है। इफ एनीवन कम्स टू द हाउस, कहाँ है, तो इट वाज हर पैरामोर। उसको मार के उसने जमीन बेच दी और पैसा सब अपने पास रख लिया, और जो भी विजिट करने आए तो उसको बताया कि वो सो रही है, वो बीमार है, दवाई चल रही है, तो उसको दरवाजा खोल के दिखाते तो शक्ल दिखती कि वो सो रही है। 1 महीना तक वो ऐसे ही करता रहा। उसके बाद वो दीवार पीछे से तोड़ा, पीछे एक बगान सा था, वहां पर खोदा और वहां पर दफना के ही लेफ्ट। कॉफिन भी उसने अंदर ही बनाया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। निर्भया का आपने अगर फैक्ट सुने हैं तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ऐसी ब्रुटैलिटी कोई नहीं करता।
इसीलिए कोर्ट ने बोला कि देखो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, सिवियरिटी ऑफ द एक्ट and also the means by which it has been done is very important for you to understand if it comes under rarest of the rare or not. इसीलिए कोर्ट ने आपको इसी केस में दो फैक्टर्स दिए, एग्रेवेटिंग, मिटिगेटिंग। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स मतलब ऐसे कुछ चेकलिस्ट, ऐसे कुछ पॉइंट्स कि अगर वो टिक होते चले जा रहे हैं तो आपका फैक्टर एग्रेवेट हो रहा है, मतलब आप मर्डर में या जहां भी डेथ एज एन ऑफेंस है वहां पर जाने के लिए डेथ अवॉर्ड करने की तरफ जा रहे हैं। अगर एग्रेवेटिंग एग्रेवेट मतलब बढ़ाने वाला, आपकी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की तरफ जाने वाला एग्रेवेटिंग, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से दूर ले जाने वाला मिटिगेटिंग। तो कोर्ट ने इस केस में यह बोला कि अगर एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हमने कुछ बताए हैं, जो कि एग्जॉस्टेड नहीं है, मतलब यही नहीं कि खाली यही फैक्टर्स हैं, और भी हो सकते हैं, आप इवॉल्व करो, पर अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, एग्रेवेट मतलब बढ़ाना, बढ़ाना मतलब किस तरफ बढ़ा रहे हैं, डेथ अवॉर्ड करने की तरफ बढ़ा रहे हैं। मिटिगेटिंग मतलब घटाना, मिटिगेटिंग कहां तक, डेथ अवॉर्ड ना करने की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप समझिए, अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स पे टिक करके देखिए, अगर सारे फैक्टर्स टिक हो रहे हैं तो आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की तरफ जा रहे हैं, डेथ अवॉर्ड कर दीजिए। मिटिगेटिंग फैक्टर्स की तरफ, मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी टिक हो रहे हैं तो बैलेंस करिए, किसका पल्ला भारी है। इसी को बोला गया बैलेंसिंग टेस्ट। एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को बैलेंस करने को ही बोला गया बैलेंसिंग टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? इस केस में भी ऐसे ही एक्स का यूज किया गया, पूरे परिवार को मारा बच्चन सिंह ने, और यहां पर फिर वो बोले कि भैया लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए। देखिए, शी वॉज अवेकन्ड बाय द अलार्म एट द राउंड मिड बाय सॉ द एपेलेंट इन्फ्लिक्टिंग एक्स ब्लोज ऑन द फेस ऑफ हर सिस्टर। चेहरे पे कुल्हाड़ी मारना, आप सोच रहे हैं कितना घिनौना और कितना जघन्य कृत्य है। ठीक है जी, मैं आपको अभी एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग बता देता हूँ। देखिए, एक और केस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, मच्छी सिंह एंड अदर्स, स्टेट ऑफ पंजाब, 1988। द कोर्ट लेड डाउन सर्टेन क्राइटेरिया फॉर असेसिंग। एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चन सिंह के साथ पढ़ने के लिए, वो है मच्छी सिंह एंड अदर्स। ये 1983 में हुआ था, सॉरी नॉट 88, 1983 में। 1983 में 3 साल बाद ही एक और केस आया मच्छी सिंह का, जो बच्चन सिंह के साथ ही पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को पढ़ने से थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाती हैं। डॉक्ट्राइन इवॉल्व बच्चन सिंह में हुआ है, थोड़ा सा एक्सपाउंड, एक्सप्लेन मच्छी सिंह में भी कर दिया, और आज तक ये डॉक्ट्राइन अप होल्ड किया जा चुका है। दैट मीन्स इसके खिलाफ कोई केस नहीं, सब अप होल्ड कर रहे हैं। हर केस बोल रहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के हिसाब से करिए। The court laid down certain criteria for assessing when a case could fall within the purview of rarest of the rare. कब फॉल कर सकता है, तो एक्सप्लेन कर रहा है मच्छी सिंह केस, इसलिए मच्छी सिंह केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। जैसे कि मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर, अभी जो मैंने आपको बताया, मैनर कैसे किया आपने मर्डर, छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में डाल रहे हो, 1 महीना तक वो डेड बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हो, दिखाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, तलवार लेके और पूरे फैमिली का मर्डर कर दिया इतना ब्रूटली कि उसके सारे टुकड़े वहीं पे पड़े हुए हैं। तुम एक गैंग बना के आते हो, पूरा परिवार तबाह कर देते हो, और पूरे सोसाइटी में तुमने भय ला रखा है। सब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। In an extremely, when the murder is committed in an extremely cruel, ridiculous, diabolical, rebellious or reprehensible manner. Extremely cruel, देखो ये रूटीन नहीं होता, cruelty is normal, extremely cruel, बहुत घिनौना, ridiculous, diabolical, rebellious और reprehensible, जिसको सोसाइटी नहीं चाहती कि ऐसा कोई कृत्य ना करे, यहां ऐसे एक्ट्स मत करो। When the victim's house is set on fire, for example, when the victim, देखिए आगे क्या लिख रहा है, reprehensible manner so as to arouse intense and extreme outrage of the community. Arouse intense and extreme outrage of the community. सोसाइटी में outrage लेके आ रहा है कि ये कैसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, ये क्या है, ऐसा कृत्य कोई करता है? जलते हुए आग में कोई किसी को धक्का मारता है?
तंदूर में कोई किसी को मार के फेंक देता है, ब्लास्ट फर्नेस में गिरा देता है। ये एक्ट नहीं चाहिए हमें सोसाइटी में। अपने एक्शंस को संभालिए। When the victim's house is set on fire with the intention of baking her alive, when the victim is tortured for inhuman acts leading to her death, when the victim's body is mercilessly mutilated or cut into pieces, यही तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए। तो मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर एक फैक्टर है, सिर्फ इसी से डिसाइड नहीं होगा, ये एक फैक्टर है। मोटिव फॉर मर्डर, मर्डर किया क्यों? when a murderer intended to be a total depravity, when a murder is intended to be a total depravity and cruelty, for example a hired killer is killing just for the reward of money। अब कोई प्रोफेशनल किलर है जो पैसा लेता है और आदमी को मारता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। क्यों? ये रूटीन नहीं है। किसी मोटिव से कोई शायद कभी मार दिया हो तो मार दिया हो, समझ में आता है। आप तो पैसा लेके इसको धंधा बना लिए, बिजनेस कर रहे हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये पैसा लेगा किसी को भी मार देगा। इसका रहना तो वैसे ही, बिकॉज ही इज इमोशनलेस, ही इज मोटिवलेस, द ओनली मोटिव इज मनी। एंड इफ ही ट्राइज टू मेक इट अ कैपिटल एंटिटी, इट इज वेरी वेरी अबोरेबल इन सोसाइटी माइंडेड। ये काम तो बहुत ही गड़बड़ है। A cold-blooded murder involving a thoughtful design to gain control of property or some other selfish gain, ऐसे कुछ मोटिव्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। Socially heinous nature of crime, when a person belonging to a backward class is murdered, cases of burning of the bride, popularly known as dowry death, also included in this। बहू जला दी, बैकवर्ड क्लास को मारा, वो हीन भावना जो आप सोसाइटी में दिखा रहे हैं कि बिकॉज ही बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास आई विल किल यू। The magnitude of crime, when the proportion of crime is very high, personality of the victim of the murder, when the victim of the murder is an innocent child, a helpless woman or person due to old age or infirmity, a public figure, etc. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रीगण, कोई अच्छा अधिकारी, जज, IAS, IPS ऑफिसर्स, ये पब्लिक फिगर्स हैं। कोई अच्छा वक्ता, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा वकील, इन सब की हत्या करना कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में अबोरेंस लेके आती है कि आप इनको मार के कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल रंजिश में हुआ है तो बात अलग है, लेकिन आपने उसके प्रोफेशन को देख के मारा, उसकी पब्लिक फिगर या उसकी पर्सनैलिटी देख के मारा है, तो आप कहीं ना कहीं एक एग्रेवेटिंग फैक्टर में जा रहे हैं। मोटिव इज वन ऑफ द एग्रेवेटिंग फैक्टर। देखिए इसी केस में बोला भी, द कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। In a criminal case, the trial is divided into two parts to understand rarest of the rare, the nature and the gravity of the offense. The severity of the penalty can be calculated based on the two essentials. कि ये nature और gravity of offense क्या है? The Indian judiciary has made a vow to find some type of balance between aggravating and mitigating circumstances. Aggravating और mitigating circumstances के बीच में balance create करना होता है। The rarest of the rare doctrine can be divided into two subparts: aggravating circumstance, mitigating circumstance. In case of aggravating conditions, the judge may on his will force capital punishment, yet for mitigating, the bench will not grant capital punishment under the rarest of rare case. वही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वही कुछ इन स्लाइड्स में रिट्रेट की गई है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्या होगा। आप कैसे समझेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है? मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग का सारा टेस्ट करके। मिटिगेटिंग से आप दूर चले जाएंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से, एग्रीवेटिंग से उसके पास चले जाएंगे। देखिए जैसे नाथुराम गोडसे में, गोडसे वर्सेस क्राउन वाले केस में गांधी जी की डेथ हुई, पब्लिक फिगर थे और एक इसी इंटेंशन से मारा कि इन्होंने पब्लिक फिगर हैं और बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इतनी सब चीज़ें इनके थ्रू इस देश में बिगड़ रही हैं या बन रही हैं या व्हाटसोएवर, तो वो पब्लिक फिगर देख के आपने मारा है। कोई आपसी रंजिश नहीं थी आपकी, कोई एक ऑल्टरकेशन नहीं हुआ। मोटिव इज फिट इन दिस केस टू गिव डेथ एज अ पनिशमेंट टू दैट पर्सन। फिर केहर सिंह वर्सेस स्टेट, केहर सिंह वर्सेस स्टेट आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस। तो 3 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी और भारत के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश करी,
तो ऑब्वियस सी बात है, एन इनकम्बेंट प्रधानमंत्री को आपने बीइंग इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट मारा, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। फिर देखिए these are few cases in which few other aspects were discussed with respect to the rest of the rare case, although it is not that important to be discussed. One more thing I want to discuss here before I discuss that, देखिए Edward, just a moment. देखिए यहाँ से पढ़िए, there may be aggravating as well as mitigating circumstances which are to be examined by the court at the same time it is not possible to lay down the principles to determine as to which case would fall in the category of rarest of the rare, justifying the death sentence. ये statement मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फॉर्मूला आप फिक्स नहीं कर सकते कि ये एग्रीवेटिंग रहेंगे और ये सारे मिटिगेटिंग रहेंगे. इट इज जस्ट दैट वी कैन enumerate different and new heads under which we can see that this becomes an aggravating factor, this becomes a mitigating factor. So for example, if the person is a sole breadwinner of the family and if he does not live, that they will go to extreme penury. If he is in life imprisonment and is earning something, he can send it to home. क्योंकि जेल में भी आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो कम से कम घर आप पैसा भेज सकते हैं. अगर वो मर ही गया तो क्या ही मिलेगा. देन ही इज द ओनली पर्सन इन दी फैमिली जिस जो सारा सपोर्ट इमोशनल उसी से आता है, तो आप उसको जिंदा रख के अगर किसी फैमिली को चला सकते हैं तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर बन जाएगा, इफ यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, क्योंकि लॉस तो उसके फैमिली को भी होगा ना अल्टीमेटली. One more thing I want to discuss here is something called triple test. Shankar Kishan Rao Khade versus State of Maharashtra was a case in 2013 which evolved something called triple test. अभी हमने एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के बैलेंसिंग की बात करी, दैट वाज बैलेंसिंग टेस्ट. यहां पर एक नया ही इवोल्यूशन लेके आए विच वाज कॉल्ड एज ट्रिपल टेस्ट. ट्रिपल टेस्ट क्या था कि कोर्ट कह रहा है कि एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस एज पॉइंटेड आउट अबव ऑफ कोर्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, सो आल्सो द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस. मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इवॉल्व कर सकते हैं, नए बना सकते हैं. in my considered view that the test that we have to apply while awarding death sentence are crime test. ट्रिपल टेस्ट में पहला टेस्ट है क्राइम टेस्ट, दूसरा टेस्ट है क्रिमिनल टेस्ट और तीसरा टेस्ट है आरआर टेस्ट. आरआर टेस्ट मतलब वही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट. वो कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट से पहले आप दो टेस्ट और करिए. क्या टेस्ट? जिससे कि आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तक पहुंचने में और आसानी हो जाए आपको. पहला है क्राइम टेस्ट. क्राइम टेस्ट का मतलब ये देखिए कि क्या क्राइम उसने किया है, उसकी ग्रेविटी और सिवियरिटी पे डिस्कस करिए. द क्राइम टेस्ट हैज टू बी फुल्ली सेटिस्फाइड, दैट इज 100%. इसको आप 100% सेटिस्फाई करिए. एंड देन अप्लाई द क्रिमिनल टेस्ट, दैट इज नो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस फेवरिंग द एक्यूज्ड. मतलब पहले आप क्राइम टेस्ट करिए, देखिए कि कैसा क्राइम किया है, कैसे किया है और कहां तक वो एलिजिबल है. दैट मीन्स एलिजिबल एज इन दैट हाउ far you can go with understanding that what far reaching circumstances or consequences it can get you into. तो 100% क्राइम टेस्ट अगर सफल हो गया है. क्रिमिनल टेस्ट मतलब क्रिमिनल के अंदर कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस नहीं है, क्रिमिनल की कोई गलती नहीं निकल रही, कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल सोचा समझा है, प्री मेडिटेटेड है, सब कुछ ध्यान देने के बाद हुआ है. क्रिमिनल टेस्ट में मिटिगेटिंग फैक्टर 0% हो जाए तो आखिरी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट में डाल के आप इसको डेथ अवॉर्ड कर दीजिए, पनिशमेंट. अल्टीमेटली अगर हम इस केस को थोड़ा असेस भी करें तो जो भी ये क्राइम टेस्ट और क्रिमिनल टेस्ट है वो हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में डिस्कस करते ही हैं. तो इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. हाउएवर ये एक ट्रिपल टेस्ट के नाम से इस केस में इवॉल्व किया गया एक सिचुएशन.
See, it says even if both the tests are satisfied, that is the aggravating circumstance to the fullest extent and no mitigating circumstances favoring the accused, still we have to apply finally the rarest of the rare test. RR test depends upon the perception of society, that is society centric. अब ये rarest of the rare को कहां पर ले आए? इन ट्रिपल टेस्ट में फर्स्ट इज क्राइम टेस्ट, सेकंड टेस्ट इज क्रिमिनल टेस्ट. मतलब क्राइम टेस्ट में एग्रीवेटिंग देख लो, क्रिमिनल टेस्ट में मिटिगेटिंग देख लो. और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट का मतलब यहां पर इस केस में कोर्ट ने बोला कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव देख लीजिए कि समाज अगर ऐसे में डेथ पनिशमेंट देना चाहता है तो दीजिए, नहीं देना चाहता तो मत दीजिए. तो सोसाइटल कॉन्शियसनेस देखिए कि सोसाइटी क्या चाहता है ऐसे केसेस में. सोसाइटी सेंट्रिक इज आरआर टेस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिपल टेस्ट. और जो हम अभी तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन पढ़ रहे थे उसमें यही सब चीजें समाहित थी, यहां पर उसको अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं हुआ. तो जो चीज हम पहले पढ़ रहे थे वही यहां पर भी है, लेकिन मैं ध्यान क्यों ले गया आपका इस पे, जिससे कि आप ट्रिपल टेस्ट क्या है ये समझ जाएं. दूसरा, आप आरआर टेस्ट को यहां से उस आरआर से कंफ्यूज ना करें. यहां पे आरआर टेस्ट सोसाइटी सेंट्रिक टेस्ट है. ये एक नई चीज थोड़ी सी इसमें इवॉल्व करने को दी. तो एग्रेवेटिंग को क्राइम टेस्ट बोल दिया, मिटिगेटिंग को क्रिमिनल टेस्ट बोल दिया और सोसाइटल पर्सपेक्टिव को आरआर टेस्ट बोल दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट. जब आप इन तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं, मतलब क्राइम टेस्ट 100%, क्रिमिनल टेस्ट 0%, आरआर टेस्ट ऑल्सो 100%, मतलब सोसाइटी सेंट्रिक, दैट जज सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, जज के अकॉर्डिंग नहीं, सोसाइटी क्या चाहती है, दैट इज वेदर द सोसाइटी विल अप्रूव द अवॉर्डिंग ऑफ डेथ सेंटेंस टू सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राइम्स और नॉट. अगर ऐसा लगता है कि सोसाइटी चाहती है कि डेथ सेंटेंस अवॉर्ड हो तो आप फिर डिसाइड कर सकते हैं डेथ पेनल्टी देने के लिए. If you have understood what is triple test, it's a new thing which you must get hold of. बाकी there are certain other findings of the statistics कि कहाँ पर ये आजकल दुनिया में है कि नहीं है. We have certain statistics upon that. For example, Hong Kong and Seychelles abolished the death penalty for all crimes in 1993. Italy abolished in 1994. Then Djibouti, Mauritius, and Moldova and Spain abolished the death penalty for all crimes in 1995. They have abolished it completely. There are several states, several countries in the world which have abolished death penalty completely. Belgium also abolished it. Several countries. See, Uzbekistan, Chile, Argentina, Burundi, Togo, Gabon, Latvia, Bolivia, everyone almost abolished it. Then in 2022, Papua New Guinea, the Central African Republic, Equatorial Guinea and Zambia abolished the death penalty for all crimes. अभी 2022 और 21 में भी कुछ countries ने इसको, Kazakhstan and Sierra Leone abolished the death penalty for all crimes. तो recently भी death penalty abolish हुई है. I hope that you have understood the background of the rarest of the rare case, why it is so important and how we have to approach rarest of the rare case, at least to a certain extent, if not in that particular detail. Thank you so much for today. We'll come up with some other videos timely and we'll get connected with you. Thank you.